Hello everyone. So in this one we are simply discussing about the accountancy class 11th overview. I have DK Goyal with me and simply discussing the overview and indexation for the same. So देखिए we have this uh, DK Goyal with us with the latest edition I have, and इसमें what we will discuss: assertion, reason question, case based, multiple choice question based on missing high order thinking skills, project working theories. तो देखिए simply what we need to do is to now we are simply reading the indexation for the same. तो सबसे पहले we have chapter number 1 in our hand, and chapter number 1 simply relates with, we have student of class 11th as well, we all together with me, but currently I am not taking the interview currently. Now we are discussing the overview, and if we have any problem then he will tell you about the class 11 curriculum. देखिए in indexation what all chapter we have chapter number 1, that is the meaning, objectives, scope and nature of accounting. That is chapter number 1. Chapter number 1 is theoretical in nature because you are class 11 student, you don't know about anything about the accountancy. So it will tell you about the meaning, what are the objectives, the scope and nature of accounting, how many types of accounting. I know you know about the types of accounting, that is taxation accounting, cost accounting, financial accounting. So you will read further. This is just an introductory part. Then you will get to know about the basic accounting terms, what is your accounting, what is the principles of account. Principle you will come to know about chapter number 3, but you get to know about the basic accounting terms, that is like debtor, creditor, and all such things. Then you will discuss about the accounting principles of accounting. So you will come to know about the basic accounting principles. So chapter number 3 is all about what are actually the accounting principle, the principle of conservatism. You will read about the all the principles of accounting. I'm just giving one example to you, that principles, for example, it is the principle of conservatism or something else. Then you will read about the process and basis of accounting. तो देखो स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी वाले बुक्स में क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट अबाउट थ्योरी, ये आपको सब टर्म्स टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर कराने के लिए है. इसके बाद 11th क्लास में आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, बट आपको ये बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि क्यों कोई पर्टिकुलर अकाउंट रियल है, नॉमिनल है या फिर पर्सनल है, कैसे एंट्रीज हो रही है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है. तो ये जब आएगा तभी जाके आप जर्नल एंट्री से लेजर बनाओगे, लेजर से ट्रांजेक्शन करोगे. तो ये सिंपली आपको कैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग टर्म्स में कब आएगी, जब वो इकोनॉमिक टर्म्स में उसका मेजरमेंट हो रहा होगा एंड ऑल. उसके बाद प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल बेसिक नेम्स वगैरह आपको बताए जाएंगे, क्योंकि फर्दर जब आप हायर लेवल पे जाओगे तब आपको उसके अंदर एक एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी अकाउंटिंग करना सिखाया जाएगा. तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा. उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस, देन डबल एंट्री सिस्टम, देन ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसे आप इनवॉइस वगैरह देखते हो तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज होती है, फिर उसका लेजर होता है, पोस्टिंग तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट वाला. उसके बाद हमें सिखाया जाएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आपको सिखाई जाएगी. तो देखो आपको इंटरेस्ट लेना है, आपको चीजें सुननी है. आप एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे तो आपको क्या है कि चीजें जो है वो ज्यादा और फेमिलियरिटी के साथ पता चलेगी, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट आता है जाएगा. तो देखो आपको इंटरेस्ट तो आएगा, आई विल टेल यू. देखो मेरी भी क्लास 11th 10 से 11 में आई थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होता है एंड ऑल सच थिंग. तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्ट होगी. एंड आई एम ऑल्सो इन सी ए फाइनल करेंटली. तो आई विल टेल यू दैट जिससे से आपका लेवल एक एक क्लास से बढ़ता जाएगा, आपको अकाउंटेंसी अच्छी लगने लग जाएगी, एंड आपने भी अपनी चॉइस से लिए होगे. उसके बाद बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देन अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का कैसे इम्पैक्ट होगा वो आपको इसमें पता चलेगा. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक्स वगैरह, कैसे रिसिप्ट, कैसे पेमेंट, क्या ये रियल अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है, ये सारी चीजें पता चलेगी. फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पज सब्सिडी बुक्स,
then ledger, then trial balance and errors, then rectification of error. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड तो नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें सारी चीजें आने लग जाएगी। बट ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें आप ओमिशन, कमीशन, अलग अलग टाइप्स के एरर्स को पढ़ोगे, जिससे क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारा चीजें आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें आपको क्या होगा कि आपने कैश बुक और पासबुक को टैली नहीं किया है, तो इस तरीके से आप उनको कैसे बैलेंसिंग करना सीखोगे तो आप डिजिट्स के साथ डील करोगे, आपको मजा आएगा। एंड हाँ, 11th-12 में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट सब्सिक्वेंटली व्हेन यू डू दी हायर स्टडीज तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन क्या होता है कि यूजुअली जो नॉर्मल वियर एंड टीयर और जो पासेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, जिससे डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जो किसी भी एसेट की वैल्यू गिरने लग जाती है, तो ये आपको पता चलेगा डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। देन प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन जो है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, एंड रिजर्व जो होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये फर्दर आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपका प्रोविजन बनाते हो जब आपको लगता है कि आपके डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला है, या टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हो, तो दिस इज ऑल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो कि आपको बनाना पड़ता है। रिजर्व जब आप प्रॉफिट होता है उसका एप्रोप्रिएशन होता है, तो उस केस में आपको रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि कुछ जो है कैपिटल नेचर के होते हैं, कुछ रेवेन्यू नेचर के होते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या फिर, ये सारी चीजें पता चलेगी। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें बैलेंस शीट आती है, P&L आता है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट देते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई चीज नहीं लेना था, उसे ले लिया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था उसे ले लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन था उसे ले लिया, जो कि आपके ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स के अलावा है, या कोई एडजस्टमेंट लेना भूल गए हैं, तो वो सारा कंसिडर करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो आप जब बैलेंस शीट्स वगैरह बनाओगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी आएगी, बिकॉज अगर आपका बैलेंस टैली हो जाता है तो एक सेंस ऑफ प्लेजर फील होगा, और अगर नहीं होता है तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि कहाँ पे क्या एरर रह गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिपोर्ट रिकॉर्ड से आप सिंगल एंट्रीज वगैरह करोगे, एंड ये प्रोजेक्ट्स वगैरह है। तो इस तरीके से हमारी जो अकाउंटेंसी है, चाहे ऑथर कोई सा भी हो, चाहे DK गोयल हो या TS ग्रेवाल हो, मैंने अपनी पढ़ाई दोनों से की थी। जब मैं क्लास 11 में थी तो मैंने पर्टिकुलरली DK गोयल हमें रेफर करवाई थी, एंड क्लास 12 में हमने TS ग्रेवाल कराई थी। तो दोनों की साइज और वॉल्यूम सेम है, तो आपको ऐसा लग सकता है बुक बहुत बड़ी है, बट इजी है अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो। कंटेंट ज्यादा है बट आपको समझने में आई डोंट थिंक सो अकाउंटेंसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी। मेरा क्लास 11 का अकाउंट्स का स्कोर यू रिमेम्बर, इट इज एन 85 समथिंग आई थिंक सो। तो आई डोंट नो प्रॉपरली, हाँ, बट मेरा स्कोर जो था क्लास 11th में अकाउंटेंसी का स्कोर, इट वाज समवेयर बिटवीन 85 to 89 के बीच में कुछ था। मेरे साथ ये इशू था थोड़ा स्पीड का, मुझे स्टार्टिंग से इशू था, मुझे आता था बट मेरे से टाइमली मैनेज नहीं हो पाती थी चीज़ें, इस वजह से मेरा स्कोर जो है कम रहा आई में से, बट इट वाज डिसेंट, इतना भी कम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको 11th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप चीज़ों को डेली बेसिस पे रेगुलर तरीके से और थोड़ा इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहें। So hope that this video you find fruitful to you, and see you in the next video. All right. Okay. Bye. Do you want to say something for accountancy? No. Okay. So in for the subsequently, actually I am teaching one student also of class 11. So what sort of queries student have, I get to know from that, and I will try to solve it. Okay. So till bye from my side, and this is all about the accountancy, I may say.